Yes, let's begin the session now. I hope that my voice is properly audible to you and you all can see the screen as well. Yes or no, dear students? All right. Just a second. All right. Yeah, voice is audible. Let's begin the session now. Okay. So what we are going to do is we are going to start chapter number 10, that is pronoun. It is on page number 34. You can take out your book. Take out your book, page number 34. Right. So we are going to start chapter number 10, that is pronouns. Right, dear students? In today's session, we will be discussing about the vocabulary part, right? We will be discussing the word meanings only, and in the upcoming session tomorrow and day after tomorrow, we will be discussing about what actually the pronouns are, है ना? कल के सेशन में और आने वाले सेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रोनाउन होते क्या हैं और प्रोनाउन के टाइप्स क्या होते हैं. What are pronouns and what are the type of pronouns? But in today's session, we will be discussing only about the vocabulary part, right, dear students? So let's begin with this. The first word we have for today is homemaker. 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 What it actually means? The one who manages a home. जो हमारे घर को मैनेज करता है उसे हम क्या कहते हैं? होम मेकर कहते हैं. लेट्स से अबाउट आवर मदर्स. हमारी मदर्स क्या करती है डियर स्टूडेंट्स? हमारे घर को मैनेज करती है, हमारे होम को मैनेज करती है. वॉट एवर थिंग्स आर मैनेज्ड दैट इज डन बाय आवर मॉम ओनली. ठीक है. द डेकोरेशन, राइट, द फूड, right? Everything. Who manages everything? Our lunch, our breakfast, our dinner. Who manages everything? Our clothes, everything. Each and everything which is managed, right, in our home is done by our mom only, right? Our mother only. So our mother is what? Our mother is homemaker, right? Never say generally what happens when we ask students, the students reply that my mother is housewife. No, you never have to say that. Housewife is not the proper word, dear students. What you can say that my mother name is this and she is a homemaker. वो क्या है? वो एक homemaker है. Homemaker मतलब क्या है? वो हमारे घर को पूरा मैनेज करती है. Everything she manages. ठीक है? Not only the physical activities but the सोशल एक्टिविटीज एज वेल. जितने भी मीटिंग्स होती हैं आपकी, ठीक है, फैमिली में रिलेटिव्स जो आ रहे हैं या उनके घर पे जाना, एवरीथिंग हु मैनेजेस? होम मेकर. सब कौन मैनेज करता है डियर स्टूडेंट? होम मेकर ही डिसाइड करते हैं, होम मेकर ही डिसीजन, राइट? सो दिस वाज योर फर्स्ट वर्ड, होम मेकर, द वन हु मैनेजेस होम, राइट? मूविंग ऑन, सेकंड वी हैव टाइडी. टी आई डी वाई. Right now I can see few of the students, right, they are sitting in a very clean clothes, very neat and clean clothes. So that is what, that is tidy. Tidy means एकदम neat and clean होना. ठीक है. Untidy मतलब क्या होता है? Untidy मतलब होता है unclean, है ना? Not clean. मतलब जो गंदा होता है उसको आप untidy बोल सकते हो. But if it is clean, so what word you will use? You will use tidy. Tidy means एकदम साफ सुथरा. ठीक है. Okay. Moving on, next we have pick out. पिक आउट मीन्स व्हाट? क्या होता है पिक आउट? मीन्स क्या होता है डियर स्टूडेंट? पिक आउट डजंट मीन कि है ना, इसको सिंपल ऐसे समझ लीजिए कि वर्ड नहीं है, ये फ्रेज है. क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये एक फ्रेज है क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स है, वर्ब प्लस फ्रेजल, सॉरी, प्रीपोजिशन. तो ये आप बड़े होंगे तब आप पढ़ोगे दैट दिस इज नॉट द वर्ड, दिस इज फ्रेजल वर्ब, बट इसको हम वोकैबुलरी के अंदर ही स्टडी करते हैं. तो पिक आउट का मीनिंग क्या होता है? चूज समथिंग. लेट्स सपोज यू वेंट टू द मार्केट. ठीक है. नाउ एवरीथिंग हैज ओपनड नाउ. So you went to the market, you went to the cloth shop, right? You are let's suppose your mother said just choose between these two. So what your mother is going to say? Pick out any one out of these three dresses, है ना? इन थ्री ड्रेसेस में से किसी एक ड्रेस को क्या कर लीजिए? पिक आउट कर लीजिए, यानी कि सेलेक्ट कर लीजिए या चूज कर लीजिए. सेलेक्ट करना या चूज करना. सो पिक आउट मीन्स व्हाट? चूज समथिंग और सेलेक्ट समथिंग, राइट? दैट इज पिक आउट. Okay, fourth one is daisies. Okay, do you love flowers? Right? Rose, lily, jasmine, marigold. There are so many flowers, right? Okay, have you seen this flower? This is what? This is daisy flower. ये कौन सा flower है dear student? This is daisy flower. ये कौन सा flower है? Daisy. So daisies is what? Is the type of flower. So whenever you read the chapter or in exercise, if you go through with this word daisies, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि इस वर्ड का तो मीनिंग पढ़ा ही नहीं सके. नो, इट इज व्हाट? इट इज अ काइंड ऑफ फ्लावर. ये एक तरीके का क्या है? फ्लावर ही है. इस तरीके से जो फ्लावर दिखते हैं, यू माइट हैव सीन इन योर नियर बाय गार्डन्स. आपके पास में जो गार्डन्स हैं, आपने वहां पे देखे होंगे ये. ठीक है. तो उनको क्या बोलते हैं हम? इन फ्लावर्स को क्या बोलते हैं? डेजी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? डेजीज. प्लूरल
प्लूरल होंगे यानी कि मोर देन वन होंगी तो डेजीज हो जाएगा, राइट? आई होप दिस इज क्लियर. Alright, so we have completed 4 word meanings. Now moving on, we have little more. So let's study that as well. Okay, now we have amazed. Next word what we have? Next word we have is amazed. Amazed means what? Surprised. Amazed means क्या होता है dear students? Amazed means होता है surprised. मतलब किसी चीज को देख करके एकदम शॉक हो जाना, सरप्राइज हो जाना. Let's suppose today uh, इन द इवनिंग यू फिनिश्ड योर डिनर. ठीक है, इवनिंग में या नाइट में आपने 7 और 8 o'clock के अराउंड आपने आपका डिनर फिनिश किया एंड यू सॉ दैट योर फादर हैज ब्रॉट यू अ न्यू टॉय. आपके फादर आपके लिए क्या लेके आए? नया सा टॉय लेके आए हैं. तो हाउ यू गोना फील, हाउ यू गोना रिएक्ट? यू गोना फील अमेज्ड. आप कैसे फील करेंगे? आप अमेज्ड फील करेंगे, आप एकदम सरप्राइज फील करेंगे, आप बहुत ज्यादा खुश उसको लेकर के हो जाओगे. यस और नो डियर स्टूडेंट? सो दैट इज व्हाट अमेज्ड इज, राइट? मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज प्रेज्ड. Praised. प्रेज मतलब क्या होता है? एडमायर करना, यानी कि किसी की तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना. ठीक है, whenever we praise someone, whenever we admire someone, how they feel good. So what we should do? We should always praise others. हमेशा आप दूसरों को क्या कीजिए? प्रेज कीजिए. ठीक है, आपकी मम्मी ने आपके लिए खाना बनाया तो प्रेज हर कि मम्मा आज फूड बहुत टेस्टी बना है. ठीक है, एडमायर करिए उनको, राइट? सो इन दिस वे, राइट, इफ योर ब्रदर और सिस्टर हेल्प्स यू, say thank you. ठीक है, admire them, praise them for helping you. So that is a very good habit, right dear students? Moving on, next word we have is originality. Originality means what? Originality means uniqueness, यानी कि किसी की किसी चीज का यूनिक होना, किसी चीज का थोड़ा सा हट करके होना. जैसे ओरिजिनलिटी मींस व्हाट? कि समथिंग व्हिच इज वेरी प्योर, समथिंग व्हिच इज वेरी यूनिक, समथिंग व्हिच इज वेरी क्रिएटिव. दैट इज व्हाट ओरिजिनलिटी इज. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज fascinated. Fascinated means what? Interested in, किसी चीज में आपका इंटरेस्ट होना. लेट्स सपोज यू वॉच क्रिकेट. ठीक है, आप क्या देखते हैं? क्रिकेट देखते हैं. एंड देयर इज अ प्लेयर विराट कोहली. ठीक है, सो लेट्स सपोज उनकी जो बैटिंग टैक्टिक्स है, उनकी जो बैटिंग स्टाइल है, वो आपको क्या करती है? फैसिनेट करती है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट क्रिकेट के अंदर आपका डेवलप कर देती है. सो दैट इज व्हाट फैसिनेशन इज, राइट डियर स्टूडेंट्स? लेट्स सपोज यू टेक एग्जांपल ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी. तो ये सब क्या है? दे ऑल आर लीजेंड्स इन देयर फील्ड. Someone is in football, someone is in cricket and something like that. So what they do, they fascinate. वो बहुत सारे लोगों को क्या करते हैं? फैसिनेट करते हैं. दैट मीन्स बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट जो है क्रिकेट में या फुटबॉल में, वो इन्हीं की वजह से आ रहा है. सो व्हाट दे आर डूइंग? दे आर फैसिनेटिंग. तो फैसिनेट इज वेरी गुड वर्ड. ट्राइबल. ट्राइबल एक कम्युनिटी होती है बेटा, जिसमें जो लोग फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं. ठीक है, नॉट वेरी डेवलप्ड, जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं हुए होते हैं और फॉरेस्ट वगैरह में रहते हैं, उनकी कम्युनिटी को हम क्या बोलते हैं? ट्राइबल कम्युनिटी बोलते हैं. जैसे आई कैन सी सो मेनी पीपल हियर लाइक जागेटिया, दग्गड़, चौधरी. सो वी ऑल बिलोंग्स टू सम community. Someone belongs to Brahmin, someone belongs to Maheshwari, someone belongs to Jain. So we all belongs to different communities. In the same way, tribal is also a community. Tribal में क्या होती है dear students? एक community होती है जो कि जनरली फॉरेस्ट में रहती है. ठीक है, और ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं होते हैं. दे डू नॉट हैव देयर ओन हाउस, इनके पास खुद का घर नहीं होता. ठीक है, दे लिव लाइक मतलब ट्राइबल पीपल जो होते हैं जनरली बहुत ही पुअर बैगर की तरह ये लोग रहते हैं. ठीक है, ओके. मूविंग ऑन, नेक्स्ट वर्ड वी हैव वर्ड नंबर 10 इज सिविलाइजेशन. सिविलाइजेशन मींस व्हाट? एडवांसमेंट और प्रोग्रेस, यानी कि किसी चीज की तरक्की होना या किसी चीज का डेवलपमेंट होना comes under the civilization, right? So you can see that if you go 100 years back, were there mobile phones that time? No. Were there internet that time? No. There was nothing. So what we have done? We have developed ourselves, we have progressed ourselves. तो उसी को ही डियर स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन कहते हैं. उस डेवलपमेंट को ही क्या कहा जाएगा? सिविलाइजेशन कहा जाएगा. इंडस्ट्रीज का सेट होना, इंटरनेट का आना, उसके डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल यूजेस हम लोगों को करना, ये सब सिविलाइजेशन का पार्ट है, राइट? Next word we have is staple food. Staple is generally used or basically used for food only. Staple mainly किसके लिए यूज होता है डियर स्टूडेंट? स्टेपल जो यूज होता है वो फूड के लिए यूज होता है. स्टेपल वर्ड जो है वो बेसिकली किसके लिए यूज होता है? फूड के लिए यूज होता है. स्टेपल फूड मींस दैट फूड व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ऐसा फूड जो हमारे लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स?
green vegetables is important, right? If you consider about the breakfast, then milk is very necessary. So these all are staple foods. I hope you are getting. So staple basically means important, and that is very much related to your food. Next is hoarded, HOARDED. Hoarded means stored away, यानी कि किसी चीज को स्टोर करके रख लेना. Stored away मतलब किसी चीज को बचा करके सेव करके रख लेना, दैट इज hoarded. ठीक है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग शायद आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, यू आर इन द फोर्थ क्लास ओनली. जब आप बड़े होंगे तो आप पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इन दैट व्हाट वी डू, वी जस्ट होर्ड, है ना, ये वाला वर्ड जो है मैं बोल रहा हूँ होर्ड, वी होर्ड द वाटर, दी रेन वाटर, है ना. हम रेन वाटर को क्या कर लेते हैं, वहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, दैट मीन्स होर्ड कर लेते हैं, राइट. लेकिन we will come back to this. Before that, study this one, shelf, SHELF, shelf. Shelf means what, dear students? Rack. You might have seen this kind of rack. ठीक है, आप लोगों ने इस तरीके की रैक देखी होगी जनरली. So this is what basically the shelf is. यही क्या होता है dear students, आपकी shelf होती है. Now the last word for today we have is licking, LICKING. Pass the tongue over to taste. इसको मैं एक वीडियो से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ डियर स्टूडेंट. आप लोग वीडियो देखिएगा. पहले ट्विस्ट करो. So what he said here, पहले ट्विस्ट करो. तो उन्होंने क्या किया, ट्विस्ट मतलब क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोल करना. सी, आप उनके हैंड्स देख सकते हो अभी. एक हैंड उनका राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एक हैंड लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है. तो वो क्या कह रहे हैं, पहले ट्विस्ट करो. ट्विस्ट मतलब उसको रोल करो. ठीक है. और यू खाने की टैक्टिक्स बताई जा रही बेटा यहाँ पे, है ना, कि पहले ट्विस्ट करो. अब जो वर्ड हम लोगों ने पढ़ना है लिकिंग, वो भी वर्ड अभी ये यूज करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना है आप लोगों को. लिक करो. Now what he said, lick करो. ठीक है. Okay, just let me take you back. Watch it very carefully, dear student. It is very important. पहले ट्विस्ट करो. लिक करो. Okay, so what he said, lick करो. Lick करो means what, dear student? Just a second, let me show the screen. Yes. Lick करो means what? कि pass the tongue over to taste, यानी कि किसी चीज को टंग के थ्रू क्या करना, टेस्ट करना. ठीक है. जनरली व्हाट वी डू, हम लोग बिस्किट्स को, चॉकलेट्स को हम लोग ऐसे लिक करते हैं जस्ट टू टेस्ट इट. तो हम क्या करते हैं, पास द टंग, हम लोग टंग को उस पे पास करते हैं टू टेस्ट, क्या करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए, राइट. सो आई होप कि आपको ये सारे मीनिंग समझ में आए हैं, राइट. So this was all about the vocabulary part, and in tomorrow's session we will be discussing about the chapter number 10 or pronouns and its types. हम लोग pronoun को और इसके types के बारे में discussion कल के session में करेंगे, right dear students. So thank you everyone for attending it. Bye bye, have a great day.